Morning, students. Okay. And as far as the test is concerned, I hope the test was okay. And now the remaining chapter that is left for the test is, I think, lesson 6 and 7 of geography. As I have told you, okay, you will revise these two Yes, lessons. ma'am. Revise lesson 6 and 7 of geography. Yes, Okay. ma'am. For test next week. For test next week. Okay. Ma'am, This on which day? डे विल बी स्पेसिफाइड बेटा, एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाता है। हाँ, ठीक है ना। Yes, ma'am. देखो मिस्टर अखंड प्रताप सिंह, देखो listen children, let us start with the chapter. We were doing lesson 7 of history, okay, and we are going to cover the topic today, nomads and itinerant groups. Now who are nomads and itinerant groups? We know that nomads are the people who move from one place to another. Normally they move with their along with their animals and their family members. Like we studied about the banjaras, they move along with their family and along with their animals, okay. Now nomads are wandering people. Many of them are pastoralist. Pastoralist मतलब चरवाहे होते हैं, ठीक है ना? Okay, who roam from one pasture to another with their flocks and herds. Similarly, itinerant groups such as craft Ma'am, page persons. number. Page number 95, beta. Page number 95. Have a look. Okay, itinerant groups such as craft person, peddlers and entertainers travels from place to place practicing their different occupations. Both nomads and itinerant groups often visit the same places every year. Okay, so who are these people? These are, okay, wandering people. Simply we can say these are wandering people, okay, who move from one place to another. Who move from one place to another फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है ना। चाहे आप चरवाहों को ले, हाँ, या आप जो है ये जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं या जो तमाशा दिखाते हैं, Good morning, ma'am. ठीक है ना, इन लोगों को अगर आप लेते हैं, मॉर्निंग बेटा, ये लोग अपनी जीविका के लिए जो है एक जगह से दूसरे जगह ये लोग मूव करते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि दे विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर, ठीक है ना। ये उसी उन्हीं जगहों को जो है विजिट करते हैं प्रतिवर्ष जहां ये पहले जा चुके होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनकी जीविका वहां पे चल सकती है। ओके, ठीक है ना। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं दिस ईयर ड्यू टू कोविड, और दिस ईयर व्हाट वी सी दैट ड्यू टू कोविड द, आप देख सकते हैं कि कोविड की वजह से ददरी मेला नहीं लगा, ठीक है ना। अगर ददरी मेला लगा होता तो वही सारे लोग आते हैं जो प्रतिवर्ष जो है मेले में आते हैं, शिरकत करते हैं, ठीक है ना। अपने अपने जो है स्टॉल्स के साथ आते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं, और साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी करते हैं। आप देखते हैं कि बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं मेले में, खास करके जो मिकी माउस वाला जो हवा वाला जो, ओके, महल रहता है उसमें जाके वो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो these are the people. Itinerant groups are the people who move from one place to another, and nomads are the pastoralists who move along with their animals, ठीक है। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. Different caste of petty peddlers, okay, also traveled from village to village, ठीक है ना। They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarse sacks, ठीक है ना। तो बोरियां जो होती हैं, बोरियां बेचते हैं ये लोग, और रस्सी, नारियल की रस्सी बना के बेचते हैं लोग। उसके बाद जो है चटाई बना के बेचते हैं लोग, जो ये खर की जो चटाई होती है, ओके, वो बेचते हैं लोग, मैट जिसे कहते हैं। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट्स, okay. There were caste of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood, okay. Shruti, read the next section, changing society, new caste and hierarchies. Are you there?
आवाज जा रही है मेरी? हाँ, यस चिल्ड्रन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम Yes, ma'am. श्रुति हैज मैम नॉट मैं ज्वाइंड। करूं? हाँ, मैम मेंडिकेंट आई का विल रीड। मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मेंडिकेंट का मतलब होता है, ठीक है ना, जो लोग जो है अपना जीवन यापन जो है भिक्षा पे ग्रहण जो है भिक्षा पे निर्भर होकर करते हैं। मेंडिकेंट्स आर द पीपल, ठीक है ना, भिक्षुक। ओके, हम उनको भिक्षुक कह सकते हैं, जो भिक्षा ग्रहण करते हैं और भिक्षा पे उनका जो है जीवन यापन होता है। ये जो है साधुओं से जो है ये अलग होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉन्क्स। ओके, ठीक है ना। हु विल रीड? कौन कह रहा था कि मैम रीडिंग? आई विल रीड। रीड करो अनन्या। यस मैम। मैम, as the economic and the needs of society grew, people with new skills were required. Smaller castes or jatis emerged within varnas. इमर्ज्ड For बेटा, example, new castes इमर्ज्ड, इमर्ज्ड, उसको करेक्ट करो पहले। हाँ, स्मॉलर emerged. कास्ट और जातिस इमर्ज्ड विद इन वर्नास। ओके, हाँ, Smaller castes or jatis emerged within varnas. For example, new castes appeared amongst the Brahmans. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of jatis. Specialized artisans, smiths, carpenters, and monsoons were also recognized as separate jatis by the Brahmans. Jatis rather than varna become the basis for organizing society. थैंक यू। ओके, रीडिंग प्रैक्टिस करो, गड़बड़ हो रहा है। इट इज ब्रह्मनास। ओके, जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आज आता है, लास्ट में जो है प्रोनाउंसिएशन में रामा, ओके, रामायणा, महाभारता, ओके, लास्ट में आ आता है। ओके, जब हिंदी में पढ़ते हैं वही Okay, रामायण ma'am. हो जाता है, महाभारत हो जाता है, ब्राह्मणा की जगह ब्राह्मण हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे Okay, चेंजिंग ma'am. सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। एनीवेज, थैंक यू। As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और जो समाज की जो जरूरतें हैं वो बढ़ती गई, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि नए लोगों की जो है जरूरत पड़ने लगी। ओके, जो अपने अपने गुणों में निपुण थे, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के अलावा भी हम देख रहे हैं कि नए जात के लोग जो हैं वो उभर के आते हैं समाज में। और ये कौन से लोग हैं जो अपनी एक अलग प्रोफेशन को लेके आ रहे हैं? ओके, शुरू से हम क्या देख रहे हैं? ओके, सिंस वैदिक पीरियड व्हाट वी सी, सिंस वैदिक पीरियड वी सी, ओके, दैट द सोसाइटी, ओके, सिंस वैदिक पीरियड देयर वर हाउ मेनी कास्ट? देयर वर 4 कास्ट, ठीक है ना। शुरू से ही जो है 4 जाति थे। कौन से? ओके, ब्राह्मण और ब्राह्मणास, ओके, देन यू हैव द क्षत्रियास, ओके, द वैश्यास एंड द शूद्रास। ओके, ठीक है ना, वैश्यास एंड शूद्रास। इसके बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि और भी नई जातियों का जो है, ओके, और भी नई जात के लोग जो हैं वो उभर के आते हैं समाज में। और इनमें एक नई जाति का जो है जो आ रहे हैं, ओके, उनका नाम था परियाज। ओके, ये कौन से लोग थे? द स्वीपर क्लास, ठीक है ना, जो स्वीपर क्लास के जो लोग थे, ओके, इमर्ज्ड एज अ न्यू जाति। पहले 4 कास्ट, उसके बाद जो है, उसके बाद हम देखते हैं ये जो स्वीपर क्लास है एक नई, ओके, कास्ट के रूप में जो है उभर के आती है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे समाज में लोगों की जरूरत बढ़ती है, हम देख रहे हैं कि कुम्हारों की एक जाति हो जा रही है, शिल्पकारों की एक अलग से जाति हो जा रही है, जो लोग काठ का काम कर रहे हैं, बढ़ई लोग हैं, उनकी एक अलग लोकेलिटी हो जा रही है, अलग एक जो है उनकी जो है एक अलग कास्ट जो है हो जा रही है। सो व्हाट वी सी, हम देख रहे हैं कि जो शुरू से जो समाज का विभाजन जो है वर्ण के आधार पे जो हो रहा था, अब जाति के आधार पे होने लगा है। अब समाज में रहने वाले लोग जो हैं, ओके, कुम्हार के रूप में जाने जा रहे हैं, बढ़ई के रूप में जाने जा रहे हैं, सुनार के रूप में, लोहार के रूप में, ओके, इस प्रकार से उनका जो है, ओके, अस्तित्व हो रहा है। Deliberations on jati, have a look children.
इसके पहले आप ये देख सकते हैं ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल, ओके, कुतिया कौन ट्राइब, ठीक है ना, कुतिया कौन ट्राइब जो है उनका ये जो है आप कह सकते हैं उनके द्वारा बनाई गई ये कलाकृति है, ठीक है ना। Deliberations on Jati. Have a look. A 12th century inscription of from Uyakondan Udayar in Tiruchirappalli Taluka in present-day Tamil Nadu describes the deliberations in a sabha of Brahmanas. Okay, they deliberated on the status of a group known as Rathakaras. रथकारा कौन लोग हैं? वो लोग जो रथ मेंटेन करते हैं, चैरियट मेकर्स, ठीक है ना, जो लोग रथ तैयार करते हैं. They laid down their occupations, which were to include architecture, building coaches and chariots, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king. So अब हम देख रहे हैं कि एक और नई जाति का जो है इमर्जेंस हो रहा है और इस जाति का नाम है रथकारास, द चैरियट मेकर्स. इनके क्या काम है? इनका काम है ओके गेटवे तैयार करना, जो कोई भी माने ओकेशन हो रहा है तो उसका जो एंट्रेंस होता है उसको तैयार करना, ठीक है ना. टेम्पल्स जो है मंदिरों के लिए जो है गेटवे तैयार करना, उनके लिए जो है मूर्ति तैयार करना. साथ ही साथ जो है आप देख रहे हैं कि ये लोग मंडप तैयार कर रहे हैं, शादी विवाह के लिए जो मंडप होता है उसको तैयार कर रहे हैं. और उसके अलावा जो है जो राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, उनके लिए आभूषण भी तैयार कर रहे हैं. Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and the 12th century. तो 11वीं और 12वीं सदी के आते आते हम देख रहे हैं कि राजपूतों में एक नई ओके clan means a tribe, okay, they are emerging among the Kshatriyas. They belong to different lineages such as Hunas, Chandelas, Chalukyas and others. Okay, आप अपने घर में ही बात करते हुए सुनते होंगे कई बार जो है आपके पेरेंट्स जो है, ठीक है ना, जिस खास करके जो आपके ग्रैंड पेरेंट ट्राइबल पीपल, दे वर देयर, ओके, एंड दे आर द डिसेंडेंट्स. ये जो है वंशज हैं, इन लोगों के वंशज हैं. देखो, many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful states. What does the word Rajput means? राजपूत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो राजपूत शब्द का मतलब क्या है? अभिलाषा, what does the word Rajput means? मैम हम बताएं. बोलो, कोई भी मैम बताए. राजा का पुत्र. The son of a ruler, isn't it? हाँ, राजा के पुत्र यस को मैम. जो है राजपूत कहा जाता था. ठीक है, तो क्या कोई जन्म से राजपूत होता था? इतिहास में क्या सभी जो है जन्म से राजपूत थे? नो मैम. तो कैसे राजपूत बनते थे? नो मैम. कैसे राजपूत बनते थे? हाँ, बताओ, किसी एक का उदाहरण दो. मैम बाय डूइंग सैक्रिफाइस. बलि देके. और कुछ नहीं करते थे? मैम बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स. यस, बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स. दंती दुर्ग ने क्या किया था? वो क्या थे? एक राष्ट्रकूट सेना नायक थे ना. हाँ, ही वाज अ राष्ट्रकूटा चीफ ना. हाँ, इन्होंने क्या किया था? ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल, इजंट इट? उन्होंने एक अनुष्ठान किया. यस मैम. उस अनुष्ठान का नाम क्या था? हिरण्यगर्भा. हाँ, मैम उसका हिरण्यगर्भा. मतलब हिरण्यगर्भा. व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट रिचुअल हिरण्यगर्भा? उसका मतलब क्या था? सब भूल जाते हो आप लोग. मैम द गोल्डन वॉम्ब. टू बिकम व्हाट? टू बिकम अ राजपूत, इजंट इट? हाँ, यस मैम. ठीक है ना. तो दंती दुर्ग जो है वो एक राष्ट्रकूट चीफ थे. उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, ओके, और इसका मतलब होता है द गोल्डन वूम, टू बिकम अ राजपूत. और भी बहुत सारे ब्राह्मण थे. जब आप सेकंड चैप्टर पढ़े तो उसमें आपने देखा दो और भी ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने आप को राजपूत बनाया.
वर्ण से वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अनुष्ठान करके अपने आप को राजपूत बना दिया। क्यों राजपूत ये लोग बनते थे? राजपूत जो है समाज में जो है वो अपनी साहस के लिए, अपनी पराक्रम के लिए जो है वो जाने जाते थे। दे वर नोन फॉर देयर bravery, they were known for their courage, valor. Okay, and that is why people started who were not by birth Rajput, they started claiming themselves to be Rajput, and they also started giving themselves ओके टाइटल्स। ठीक है ना, जैसे कि महामंडलेश्वर, महाराजा धीराज, त्रिभुवन स्वामी, ऐसे ऐसे जो है अपने आप को वो लोग टाइटल्स देने लगे। द राइज ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जांपल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। Okay, gradually with the support of the brahmanas many tribes became part of the caste system। तो देखो, तो ब्राह्मणों की सहायता से जो है बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो जातिवाद में जो है अपने आप को शामिल कर लेते हैं। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। A large majority joined the lower caste of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite easily। ठीक है, तो समय के साथ हम क्या देख रहे हैं? समय के साथ जो है लोग अलग अलग धर्मों का अनुसरण कर रहे हैं, अपना ले रहे हैं, अपने आप को जो है कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अलग धर्म ले ले रहे हैं। कुछ लोग जो है अलग जाति में चले जा रहे हैं। तो what we see, they continue to reject the caste system. Though they are becoming a part of the caste system, they are rejecting the caste system to some extent. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. तो जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या है? ओके, एक रूढ़िवादी सोच लेके हिंदू धर्म के जो अनुसरण करते हैं लोग, वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। The emergence of states is closely related to social change amongst tribal people। और जब आप क्लास 8 में हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो लोअर कास्ट जो पीपल थे, जो दलित समुदाय के जो लोग थे, ठीक है ना, या जो छोटे जात के लोग थे, वो समय के साथ क्या करते हैं, जैसे ईसाई धर्म का जो है अनुसरण होने लगता है हमारे देश में, क्रिश्चियन मिशनरीज लोग आते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, वो लोग एक एक करके जो है अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। दे स्टार्ट adopting Christianity because okay they were getting some status in the society। अपने हिंदू धर्म में जो उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, जो उनका अस्तित्व नहीं था, ओके ईसाई धर्म लेने से उनको वो सम्मान मिलने लगा। वो सबके बराबर अपने आप को फील करने लगे। ठीक है ना। अगर आप शुरुआत से इतिहास देखेंगे तो देखेंगे कि जो छोटे जात के लोग होते थे उनको कहा जाता था कि नीचे बैठो। अगर उनको कोई पारिश्रमिक दी जाती थी तो नीचे फर्श पे रख दिया जाता था, उनके हाथ में भी नहीं दिया जाता था। क्या तो टच करेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। और भी बहुत सारे भेदभाव हुआ करते थे। तो इन सारे भेदभावों से, डिस्क्रिमिनेशन से, स्टीरियोटाइप सोच से ओके इन लोअर कास्ट पीपल्स को जो है आजादी मिली जब वो क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं। Emergence of states is closely related to the social change amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. Now you can see a Gond woman here. देखिए गौंड महिला का यहाँ पे चित्र दिया गया है। अनुज बुक लिए हो? अनुज कुमार राय। यस मैम। You have the book with you। क्या अब इसको एक्सप्लेन करो बच्चों को। What does it mean? मैम जो ट्विस्ट है, हाँ। झाड़ियाँ थी उसको पहले काट काट के उसको जला दिया जाता था। फिर मैम उसके बाद मैम क्रॉप दिखने लगता था एसिड में। जब वो जमीन अपने फर्टिलाइटी को खो देता था तो और दूसरे जगह जमीन को साफ करके और उसको प्लान कर दिया जाता था, लगा दिया जाता था उसी जगह पे। Is it right, Jay? Jayaditya Burma, will you explain? Is it right? जय अनम्यूट करो खुद को। Nowadays this boy is not listening to me। तब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम
मैम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। उस ट्रीज एंड बुशेस को पहले बर्न किया जाता है, उसके बाद से क्रॉप को एस फिर वो एस में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे फर्टिलिटी आने लगती है तो उस पे क्लियर कर दिया जाता है, फिर न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। सारा गड़बड़ हो गया। दीक्षा चौबे, विल यू एक्सप्लेन इट? दीक्षा, मैम यस यस मैम। बेटा, एक्सप्लेन करो। मैम ट्रीज और बुशेस को पहले फॉरेस्ट एरिया में कट किया जाता था पहले, फिर उसको मैम जला दिया जाता था और क्रॉप को मैम ऐश में उगाया जाता था, और फिर वो लैंड मैम वो जमीन अपनी फर्टिलिटी लूज कर लेती थी, मतलब अब उसमें कोई भी क्रॉप उग नहीं पाएगा, तो मैम दूसरे लैंड में ना तो दूसरे लैंड को क्लियर कर दिया जाता था और मैम उसी तरह से वहां पे भी प्लांट किया जाता था। गुड गुड, दिस इज नाइस। ओके, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है ना? खुशी, यू मेड सम मिस्टेक। अनुज, अभी भी तोतला रहे हो, थोड़ा तीखा खाना शुरू करो और मुंह में पेबल्स लेके जो है प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? जो बच्चे तोतलाते हैं, स्पष्ट आवाज नहीं निकलती है, अक्सर उनसे कहा जाता है कि मुंह में एक पत्थर रख लें, पत्थर को निगल मत जाना। ठीक है ना? एक छोटी सी पत्थर रख के और उसके बाद आईने के सामने खड़ी होके जो है रीडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, आवाज स्पष्ट आने लगती है। ओके, now see, shifting cultivation, as said by Khushi, it is also known as slash and burn cultivation, and as explained by Diksha, okay, it is just the same. आप जो है फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं, ओके, जहाँ पे जंगल रहते हैं वहाँ के पेड़ पौधों को काट देते हैं। जब भी आप एक्सप्लेन करते हैं ना बेटा, आपको सही अनुवाद करना चाहिए। पेड़ पौधों को आप काट देते हैं, उनको जलाते हैं, और जो राख होता है उसी राख में आप खेती करते हैं। ओके, फसल उसी में उगाते हैं, और जब जमीन की उर्वरक क्षमता घटने लगती है, आप उसी प्रक्रिया को दूसरी जगह जाके अपनाते हैं। उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि वो वापस अपनी उर्वरक क्षमता को हासिल कर पाए। ओके, नाउ अ क्लोजर लुक द गॉन्ड्स। लेट अस ट्राई टू गो थ्रू द गॉन्ड्स। ओके, हमारे देश में कौन सी ट्राइब की संख्या सबसे ज्यादा है? बहुत सारे ट्राइब्स हैं हमारे देश में। विच ट्राइब हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? हाँ, मैम गोंड ट्राइब। एंड विच ट्राइब हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल एज फार एज गॉन्ड्स। इंटरनेशनल लेवल पे? कौन है मैम अंतरराष्ट्रीय? गुरानी ट्राइब। यस, उरानी। ठीक है ना, गुरानी, गुरानी। ठीक है, सो लेट अस हैव अ क्लोजर लुक द गॉन्ड्स। ओके, नाउ दीक्षा, डू द रीडिंग। रीडिंग करो दीक्षा। Ma'am, the Gonds live in a vast forested region called Gondwana or country inhabited by Gonds. They practice shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own Raja or Rai. About the time that the power of the Delhi Sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentioned the Gond kingdom of Gera Katanga that had 70,000 थैंक यू, the थैंक यू। हो गया, administrative. हो गया बेटा। रीजन नहीं है, रीन है। ओके, शासनकाल, REIGN, रीन। ठीक है, रेस्ट ऑल इज ओके। तो हाउ मेनी वॉल्यूम्स वर देयर एज फार एज द अकबरनामा वाज कंसर्न? अभिलाषा, अकबरनामा कितने वॉल्यूम्स में लिखा गया था और किसने मैम लिखा? Ma'am, मैम इन three 3 volumes. वॉल्यूम। मैम थ्री मैम 3 वॉल्यूम। हु रोट और इट? मैम अबुल फैजल। अबुल फजल कौन थे? मैम उनके 9th Ma'am, जेम्स में से एक थे। और उनके दरबारी भी थे, ठीक है ना, उनके दरबार में मैम से थे, उनके मित्र थे, और नौरत्नों में से एक थे। ठीक है ना? ओके, सो व्हाट वी सी, द अकबरनामा मेंशंस, as far as the Akbarnama is concerned, the Akbarnama mentions what? बाहर। Okay, the Akbarnama mentions that, okay, the Gond kingdom of Gadha Katanga mentions that the Gond kingdom of Gadha Katanga, ठीक है ना, had 70,000 villages. हाँ, तो उसमें 70,000 गांव हुआ करते थे।
ओके, had 70,000 villages. ओके, तो 70,000 उसमें गांव हुआ करते थे। देखो, और ये गॉन्ड्स कहाँ रहते थे? The Gonds lived in a vast territory land. Vast forested region. Yes. Gondwana. हाँ, forested region called Gondwana. ठीक है ना? रीजन का मतलब प्रांत हो गया, एरिया हो गया, और REIGN रीन, ठीक है ना? इसको रीन प्रोनाउंस करेंगे। इसका मतलब हो गया शासन काल। ठीक है? ओके। अक्सर बच्चे जो हैं ट्रांसलेशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू द ट्रांसलेशंस, इट इज रिक्वायर्ड। जब भी अनुवाद करते हैं हम लोग ट्रांसलेशंस पे ध्यान देते हैं। The administrative system of these kingdoms was becoming centralized. Okay, centralized का मतलब केंद्रीकरण करना। Okay, एक केंद्र से, एक सेंटर से ऑपरेट करना। The kingdom was divided. See, the kingdom was divided into gad. Okay, each gad was controlled by a particular clan. Each gad was particular. This was further divided into units of 84 villages. ओके, तो देखो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जो है एक बड़ा सा जो है किंगडम है। ओके, अब इसके जो है छोटे छोटे जो है टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, और इन छोटे टुकड़ों को जो है क्या बना दिया जा रहा है? गढ़ में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ओके, अब देखो, सी दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। अब एक गढ़ को जो है फर्दर डिवाइड कर दिया जा रहा है इनटू 84 villages. जिसको 84 कहा जा रहा है। ओके, into small units called 84. Now again this 84 it was further divided. ये जो 84 है इसको फिर जो है डिवाइड कर दिया जा रहा है into बरहोत्स। ठीक है ना? बरहोत्स में कितने विलेजेस हैं? 12 विलेजेस हैं। मैम 12। ओके, तो देखो एक पूरे गाढ़ा कतंगा में कितने हैं? ओके, अगर हम इस पूरे को ले रहे हैं तो इसमें 70,000 गांव है। ठीक है ना? 70,000 गांव है ना? Yes, ma'am. 70,000 विलेजेस। अब इन 70,000 विलेजेस को एक जगह से तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोटे छोटे खंडों में हम बांट दे रहे हैं। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द गढ़। ओके, अब एक गढ़ को जो है हम क्या कर रहे हैं? उसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इनटू 84 विलेज। ओके, अब 84 विलेज में कितने बरहोत्स आ जा रहे हैं? अगर 12 गांव, ओके ना बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है ना? तो एक 84, ठीक है ना? 84 विलेजेस में जो है कितने बरहोत्स तैयार होंगे? 7 बरहोत्स तैयार होंगे। 12 into 7 is 84। ओके, तो देखो ऐसे करके जो है सबसे छोटा यूनिट कितना हो गया? सबसे छोटा यूनिट हो गया 7,000 विलेजेस का। तो 7,000 if 70,000 is divided by 7, so how many villages we are getting? The smaller unit, हमें कितने बरहोत्स मिल रहे हैं? Now nobody will tell. 1,000 बरहोत मिलेंगे ना? हाँ कि 10,000 मिलेंगे? 10,000। यस, तो 10,000 बरहोत हो जा रहे हैं। ओके, तो देखो ईच गढ़ वाज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। तो एक गॉन्ड क्लैन जो है एक गढ़ को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम एक गढ़ को ले रहे हैं तो एक गढ़ में 84 गांव है, और एक गढ़ में कितने विलेज आ जा रहे हैं? कितने बरहोत आ जा रहे हैं? 7 बरहोत आ जा रहे हैं। तो फॉर एवरी 7 बरहोत्स देयर वाज अ गॉन्ड क्लैन ऑपरेटिंग। The emergence of large states changed the nature of Gond society. Okay, their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Okay, तो समय के साथ जो है अब ये देखो इक्वल सोसाइटी है ना? हाँ, आप देख रहे हैं कि हर एक 84 में जो है 84 गांव है, हर एक 84 एक गढ़ में 84 गांव है, एक गढ़ में आप देख रहे हैं कि 7 बरहोत हैं। ओके, इक्वल डिवीजन हुआ था पूरे सोसाइटी का। 70,000 गांव को जो है इक्वली डिवाइड किया गया था, ताकि एक एक ट्राइब जो है एक एक गढ़ को कंट्रोल कर सके। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है? ओके, अनइक्वल सोशल क्लासेस जो है समाज में आने लग रहे हैं। ओके,
Now what we see, Brahmanas received land grants from the Gond Rajas and became more influential. तो समय के साथ शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी है इसमें क्या है, जो ट्राइबल समुदाय है इसमें हम देख रहे हैं कि वर्ण के आधार पे समाज का विभाजन नहीं हो रहा है. ओके, जो ट्राइबल्स हैं उसमें कौन रिपीट कर रहा है जी? रोहित आप कर रहे हो? What we see that among the tribals, okay, they are not being divided on the basis of the varnas, neither they are following any religion. What they are following is the kinship bonds. ठीक है ना, वो लोग ब्लड रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं. और हम देख रहे हैं कि इनमें जो है पावरफुल ट्राइब है और लेस पावरफुल ट्राइब है, बट देयर इज नो डिमार्केशन इन द सोसाइटी एज फार एज द वर्ना इज कंसर्न. So what we see that with passage of time, the brahmanas they become influential. तो जो ये ब्राह्मण, ओके, जो जिनका अस्तित्व ट्राइबल सोसाइटी में पहले नहीं था, वो अब जो है प्रभावशाली होने लग रहे हैं. इनका अस्तित्व कैसे बढ़ रहा है बताओ, क्यों इनका अस्तित्व बढ़ने लगा? हाँ बताओ. वी स्टडीड ना जस्ट नाउ. इनकी सहायता से कौन लोग जो है कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं? Who are entering the caste based society with the help of the brahmanas? राजपूत। ना, ये बहुत गलत है. हाँ, many tribes, okay, joined the ruling class. ठीक है ना, जो लोग सत्ता में थे, जो लोग शासन कर रहे थे, ओके, उनको ज्वाइन करते हैं किसकी सहायता से? ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्राह्मणास. ठीक है ना, ये ब्राह्मणों की सहायता से जो है जो शासन कर रहे होते हैं उनके, ओके, उनके मध्य जो है ये अपना स्थान बना लेते हैं. तो क्यों नहीं इनको अनुदान देंगे? जब ब्राह्मणों की सहायता से जो लोग शासन कर रहे हैं उनमें अपना एक स्थान बना दे रहे हैं जो ट्राइबल्स हैं, तो वो क्या करेंगे? ब्राह्मणों को अनुदान ही ना देंगे? हाँ, उनको रेस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे? उनको गिफ्ट देंगे ना. क्यों? क्योंकि इनकी सहायता से उनको एक नई पहचान मिल रही है. उनकी सहायता से उनको समाज में एक नई पहचान मिल रही है. ओके, नाउ व्हाट we see that the Gond chiefs now wished to be recognized as Rajputs. और ये एक तरीके से जो है सीढ़ी थी, ब्राह्मणों का इस्तेमाल करके जो है अब ये जो गॉन्ड जो रूलिंग चीफ्स हैं, ठीक है ना, ओके, जो सेना नायक हैं लोग, जो ये जो ट्राइब्स के जो सेना नायक हैं, अब ये अपने आप को राजपूत क्लेम करने लग रहे हैं. ओके, नाउ इट इज क्लियर एवरीबॉडी. कैसे जो है समाज में परिवर्तन हो रहा है इसको हमें समझना है, और इतिहास हमें यही बताता है. इतिहास हमें इसी चीज को समझने में हेल्प करता है कि समय के साथ कैसे कैसे क्या बदलाव हुए, उनकी क्या परिप्रेक्ष्य थे, उनके क्या कारण थे, और उसका क्या असर पड़ा आने वाली पीढ़ी पे. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि नाउ द ट्राइबल चीफ्स, ओके, started claiming themselves to be what? Wanted to become Rajputs. Wanted to become Rajputs. क्योंकि राजपूत को जो सम्मान मिल रहा था समाज में वो बाकी कास्ट को नहीं मिल रहा था. ओके, जैसे कि मैं बोलते आ रही हूँ आप लोगों को, राजपूतों को उनके साहस के लिए, उनके पराक्रम के लिए जाना जाता था. हर कोई उनके सहायता पे जो है निर्भर रहता था, खास करके जो शासक होते थे लोग इन राजपूतों की, ओके, ऊपर वो लोग निर्भर रहते थे दूसरे राज्य पे, ओके, अपनी जीत हासिल करने के लिए, अपने राज्य विस्तार करने के लिए. नाउ सी, the Gond chiefs now wish to be recognized as Rajputs, so Aman Das, the Gond Raja of Gada Katanga, okay, assume the title of Sangram Shah. अंडरलाइन कर लो इसको, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अमन दास का ही दूसरा नाम जो है संग्राम शाह है, वो अपनी एक उपाधि ले लेते हैं. His son दलपत married Princess दुर्गावती. ठीक है ना, तो दुर्गावती के साथ जो है उनकी शादी होती है. दुर्गावती कौन है? चंडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा. तो देखो, एक ट्राइबल होके अपने लड़के की विवाह किसके साथ करता है? ये
ये दलपत राय जो हैं, ओके, इनकी शादी किसके साथ होती है? देखो, अमनदास अपने पुत्र दलपत की शादी दुर्गावती से करते हैं, जो कि एक राजपूत कन्या है, और इस तरीके से देखो वो राजपूत अपने आप को क्लेम करने लगते हैं। ठीक है ना? अक्सर जब इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं तो द हायर कास्ट, ओके, इज रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। मान लो अगर किसी लो कास्ट के लो कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग जो है हायर कास्ट में चले जाते हैं, तो वो अपनी ओके कास्ट को चेंज कर देते हैं, अपने सरनेम को जो है चेंज करके जो है वो जो हाई कास्ट का जो सरनेम है उसको लेके आगे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है। देखो, दलपत however died early. रानी दुर्गावती was very capable, okay, and started ruling on behalf of her 5-year-old son वीर नारायण। तो अपने बेटे की जो है गार्जियन के रूप में जो है वो शासन अपने हाथ में लेती हैं, और बहुत बखूबी से जो है वो अपनी शासन को करती हैं। ओके, आगे चल के आप देखेंगे कि मुगल फोर्सेस उनको अटैक करते हैं एंड शी डाइड एक वीरांगना की मौत वो मरती हैं, रानी दुर्गावती। ओके, वी हैव वेरी लेस टाइम।